welcome to all my viewers. Exercise 12.1. Today we will begin with new chapter, that is constructions, chapter 12. We will discuss exercise 12.1 and book will be taken as NCERT. Okay, and before starting construction, dear student, you must remind the criteria of proving the triangle congruent, that is SSS, SAS, ASA and RHS. Those criteria, might be you are remembering those criterias. Those will be needed here when we will do justification of our construction, that we will do here. Okay, the first question says, as you may see from your book, construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray. We are given with a ray. We have to construct an angle of 90 degree at the initial point of it, and we have to justify our constructions also. Okay, we will begin with, first we will take a ray. We will take a ray here, ray whose one end is fixed, another end is not fixed, that is known as a ray. Okay, we have to construct an angle of 90 degree. How we will start? We will take, we will take this point as O, and this point, let us take, we have taken as A. Okay, this point A and this point O. Now taking O as center, we will draw an arc like this, which cut our ray at point B. Okay, now taking the same radius, we will make another arc here at B. Mark this point as C. Now taking C as center, mark another ray, mark another point, cut our arc at point D. Okay, C, B, C and D. Now what we will do? We will join O to C, okay, and C to D. C to D. Okay, now we have to see, if we see this point is also same, this point is also same. Now this angle, the first angle is of 60 degree, then this second angle, this angle is of 60 degree, and this angle will be of 120 degree. Now if we want to draw an angle of 90 degree, one arc will be taken from this point D, another arc will be taken from this point C, between C and between D, that means between 60 and between 120 degree. If we will take two arcs, that angle drawn will be of 90 degree. This angle will be of 90 degree. Okay, first we have to write the construction, the steps of construction, how we have drawn it, steps of constructions. Step of construction says कि हमने इसको बनाया कैसे है. Okay, how we can begin with, we will take, draw a ray OA. Okay, O is the initial point of it, that's why we have drawn an angle of 90 degree at the initial point of our ray. This is first point. Second point, we will take, taking O as center, O as a center, draw an arc of a circle which intersects OA at B. That means we got another point B. Now the third point, taking B as center, अब B को सेंटर लेके हम एक दूसरी आर्क लगाएंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे विद द सेम रेडियस, हम चेंज नहीं करेंगे कंपास को, विद द सेम रेडियस as before. Draw an arc intersecting, आप इसको थोड़ा कंसाइज करके भी लिख सकते हैं, बट एज आई एम राइटिंग फॉर ऑल, तो बच्चों को थोड़े से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा पसंद आते हैं, लेंदी. इंटरसेक्टिंग
the previous arc at point C। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं C पे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ O। अच्छा, इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट अस टेक दिस इज E, और इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट अस टेक दिस इज F, और इसको भी एक नाम दे देते हैं, लेट अस टेक दिस इज G। नाउ वी विल टेक ड्रॉ द रे OE passing through C, passing through C। Okay, now this angle will be of, we can mention like EOA, this angle will be of 60 degree, because we know that the first arc, if it is first arc with the same radius, the first angle will be of 60 degree। Then draw the ray passing through D, same point, draw the ray passing through D से आपने पास करती हुई एक रे बनाई, तो FOE, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री का, 60 वो 120 डिग्री का ऐसे बन जाएगा हमारे पास। नाउ टेकिंग D एस सेंटर, C एंड D एस सेंटर विद रेडियस मोर देन, अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास 120 डिग्री का आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्स्थ में टेकिंग C एंड D एस सेंटर, taking C and D as centers, draw the arcs and join the point of intersection with O point। O के साथ हमने उसको ज्वाइन कर दिया, ये था दोनों की आर्क का इंटरसेक्शन। सी, एक C से आर्क लगाई, एक D से आर्क लगाई, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसको O के साथ ज्वाइन कर दिया। नाउ वी गॉट OG, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ GOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज़ व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन दिस क्वेश्चन, दिस इज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसको जस्टिफाई कैसे करना है, हम कैसे बताएंगे कि हमारा ये एंगल 90 डिग्री का है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम C को B के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा वो एक्चुअली 90 डिग्री का है भी या नहीं है, और C को इसके साथ भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और अब हम क्या कर देते हैं, D को G इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं जहाँ पे ये कट हुआ है, और जहाँ पे ये कट हुआ है इसके साथ कंस्ट्रक्शन कर दे। अब हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, देखो नाउ दिस एंगल वॉज ऑफ 60 डिग्री, ये जो इतना एंगल आया था वो हमारे पास 60 डिग्री का था। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, अब C 60 डिग्री का, ये BC और ये जो OB है और ये जो OC है, OB OC हमारे पास देखो अगर हम सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो ये दोनों उसकी रेडियाई हैं, OC भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, और जितनी हमने OB रखी थी उतनी ही हमने यहाँ से कट लगाया था ये वाला। तो इसका मतलब OC OB और BC हमारे पास जो ट्रायंगल आई है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आई है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। सेम वे में OD OC हमारे पास दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ द सर्कल है, और CD हमने बिल्कुल उसके जितना ही कट लगाया, तो ये COD भी हमारे पास कैसी ट्रायंगल आई है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आई है। दैट मीन्स ये जो एंगल है हमारे पास वो भी कितने डिग्री का आया है, वो भी हमारे पास 60 डिग्री का आया है। अब स्टूडेंट्स हम दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, इसको G को यहाँ ले आते हैं, G पॉइंट को ये वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं ऊपर की बजाय। अब देखो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ODG ये इधर वाली, ये वाली ट्रायंगल ये वाली, और इधर से OCG, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फाइन, नाउ ये जितनी आर्क हमने यहाँ से लगाई है D से उतनी आर्क हमने यहाँ से लगाई है, दैट मीन्स हमारा DG इज इक्वल टू GC के इक्वल है, और ये
OD इज इक्वल टू किसके है, OC के इक्वल है, यानी इसकी ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल, और OG दोनों में क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। दैट मीन्स ये इधर वाली जो हमारी पूरी ट्रायंगल बनी है, ये वाली इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई है, किससे, बाय SSS क्राइटेरिया से। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुकी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये पूरा एंगल 60 का था, तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया, 30। ये भी एंगल किसके इक्वल आ गया, 30। अब करके देख लेते हैं, ये एंगल किसके इक्वल, अभी अभी प्रूव किया 30। नीचे वाला क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, वो एंगल किसके इक्वल आ गया था, 60। 30 + 60 कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90। GOE है ना, यही प्रूव करना था ना हमें कि हमारा एंगल जो बन रहा है ये वाला वो 90 डिग्री का बन रहा है या नहीं बन रहा। वी हैव टू शो द जस्टिफिकेशन कि जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है क्या वो रियली 90 डिग्री का आया है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर एंड ऑल। इसको जस्टिफिकेशन बोलते हैं कि जस्टिफाई करो जो तुमने एंगल बनाया क्या वो रियली 90 डिग्री का है या नहीं, उसको प्रूव करके दिखाना है विद इन द मैथमेटिकल टर्म्स। तो देखो बहुत क्लियरली हमने इसको 30 का दिखा दिया, इक्विलेटरल प्रूव करने की वजह से हमने इसको 60 का दिखा दिया। जब हम 60 और 30 को ऐड करते हैं तो कंप्लीट एंगल हमारे पास कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ये चीज़ आपको यहाँ पे शो करके दिखानी है कि आपने दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, फिर कैसे आपने अपना एंगल 60 में 30 ऐड करके 90 का शो किया है। दिस इज़ नोन एज व्हाट, जस्टिफिकेशन। आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, बस जस्टिफिकेशन आप एक बार अपने तरीके से यहाँ पे करके दिखाएंगे। जस्टिफिकेशन, ठीक है। आप दो ट्रायंगल को ले लेंगे, दो ट्रायंगल को SSS वाले क्राइटेरिया से आपने क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। कौन सी ट्रायंगल को दिखा दिया, ODG ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया आपने OCG ट्रायंगल के। अगर वो कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमारा DOG एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, COG एंगल के इक्वल आ जाएगा। अगर ये इक्वल आ गया वो कंप्लीट है, और वो हाफ है हमारे पास DOC का, ये तो हाफ हो जाएगा DOC का, और DOC कितने का था, 60 का, और 60 का हाफ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री। नीचे वाला एंगल हमने कितने का प्रूव किया था, 60 डिग्री का। 60 में 30 जब आप ऐड करेंगे तो एंगल कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री। यही तो जस्टिफाई करना था, मतलब वेरीफाई करके दिखाना था ना आपको। दिस इज़ हाउ यू विल शो योर जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बिल्कुल सेम ही है, 45 डिग्री का एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। इसमें भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन करके दिखानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं जैसे हमने पीछे किया था। फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ गिवन रे। हमने यहाँ पे एक रे बनाई है, वही नाम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स है, उसको A नाम दे देते हैं, और ये वाले एंड को हम B नाम दे देते हैं। कंपास को ओपन रखेंगे, कंपास को चेंज नहीं करेंगे, हम एक आर्क लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। जो हमें जो हमारे रे को B पे कट करता है उतना ही कंपास ओपन रख के हम हम यहाँ पे कट लगाएंगे, सॉरी। ये जो होता है हमारा, ये दिस पॉइंट विल बी C। इतनी आर्क से, इतनी इससे हम यहाँ पे कट लगाएंगे, दिस विल बी D। ओके, ये जो एंगल हमारे पास बनता है फर्स्ट एंगल, दिस एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। जो सेकंड एंगल हमारे पास बनेगा दैट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये हमने किया, सॉरी 120 डिग्री। पहला जो आर्क कट होता है वो 60 का बनता है, इससे जो अगली आर्क लगती है वो 120 की बनती है। दैट मीन्स अगर हम शो करें तो ये एंगल हमारे पास किसके इक्वल आया, 60, और ये एंगल भी 60 है, और पूरा एंगल ये इतना वो किसके इक्वल आ जाएगा, 120। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, अगर मैं एक आर्क 120 से लगाती हूँ, दूसरी आर्क अगर मैं 60 से लगाती हूँ, तो ये जो एंगल मेरे पास बनेगा, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री का। ये जो एंगल आया मेरे पास 90 डिग्री का। अब डियर स्टूडेंट्स, 45 को आप कर दो डबल। आपको ये पता लगाने के लिए कि आपको आर्क कहाँ से लगानी है, जिसका एंगल आपको बनाना है 45 उसका डबल कर दो,
वो कितना आ जाएगा 90। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक आर्क तो आपको लगानी पड़ेगी 90 से, एंड सेकेंड आर्क यू विल ड्रॉ फ्रॉम 0। ये याद रखना, जिसका भी एंगल बनाना उसको डबल कर लो। डबल कितना आ जाएगा 90, यानी एक आर्क तो आपको 90 दे देगा और दूसरा आर्क के लिए आप 0 को चूज़ करें। देखो कैसे, ये 90 वाला पॉइंट है, ये है 90 का अपना पॉइंट। कंपस का जो टिप है वो वहीं पे रखा जाएगा जो आपकी मेन आर्क है, ये वाली आर्क देखो जो मेन है आपकी, ठीक है, जो आपने सेमी सर्कल बनाया हुआ है। कंपस इसके अलावा कहीं और से नहीं आर्क लगाता। तो थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा अब आप अपने कंपस को हिला सकते हैं। एक आर्क आप लगाएंगे यहाँ से 90 से, देखो ये 90 वाली है और ये 0 होता है जो आपकी रे के ऊपर वाला पॉइंट होता है, दिस इज़ नोन एज 0। दोनों को कट करते हैं, जहाँ पे कट होता है आपका दैट एंगल विल बी ऑफ 45 डिग्री। नाउ ये जो एंगल, ये जो आया है आपके पास, ये जो पॉइंट आया है, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसके साथ दिस एंगल विल बी ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। जैसे जैसे अब आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, आप यहाँ पे बनाएंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक a ray OA whose initial point is O, taking O as center draw an arc which cut our ray at B। B को सेंटर मान के एक आर्क कट करते हैं जो C पे करती है, C को सेंटर मानते हैं, सेम रेडियस से हम D पे कट करते हैं। एक आर्क C से लगाते हैं ऊपर की तरफ, एक D से लगाते हैं। जो ये पॉइंट हमारे पास आता है दिस विल गिव अस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब 45 ये रिक्वायर्ड एंगल था, इसको डबल कर लेते हैं। दिस इज़ सेपरेट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। 45 को डबल किया 90। अब हमें ये पता लग गया अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो दो आर्क जो लगेंगी वो कहाँ कहाँ से लगेंगी। फर्स्ट आर्क विल बी टेकन बाय द डबल ऑफ इट और दूसरी 0 से लगा लेंगे। तो 90 का ये था पॉइंट, एक आर्क मैंने 90 से लगा ली और दूसरी ये 0 हमेशा किसके ऊपर होगा, इट विल बी ऑन OA रे के ऊपर और कट कर दिया। जहाँ पे ये मीट करेगा हमारे सेंटर को O को, दैट एंगल विल बी ऑफ 45 डिग्री। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन करके दिखाई है, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन शो द जस्टिफिकेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ, फर्स्ट तो हमें बोलता है 30 डिग्री का, सेकेंड हमें बोलता है 22.5 का डिग्री का, और जो थर्ड हमें ड्रॉ करना है, थर्ड जो एंगल ड्रॉ करना है वो 15 का करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि इसकी दो आर्क कहाँ कहाँ से लगेंगी। एक तो 30 का डबल कर दो 60, मतलब एक आर्क तो लगेगी 60 से, दूसरी 0 रखो। ऐसे ही इसका भी डबल कर लो, 22.5 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 45 और दूसरा आपके पास 0 से आर्क लग जाएगी। सेम वे में इसको डबल कर लो, इसकी एक आर्क किससे लगेगी 30 से, 15 का डबल 30 और दूसरी आर्क किससे लगा लेंगे आप 0 से लगा लेंगे। ओके, आई विल ट्राई टू डू ऑल दीज 3 पार्ट्स इन वन क्वेश्चन ओनली, ठीक है। आप समझ जाएंगे, हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक, हम कोई रे ले लेंगे यहाँ पे। आई हैव ड्रॉन विद द पेन विच वॉज नॉट नीडेड एक्चुअली, थोड़ा बड़ा करते हैं। ये हमने आर्क लगाई, ये हमारा O पॉइंट था इनिशियल, ये हमारा A पॉइंट है रे का, B पे इसने कट किया, ठीक है। B को सेंटर लेके हम एक आर्क C पे कट करेंगे और C को सेंटर लेके इसी मेन आर्क को D पे कट करेंगे। दिस इज C, दिस इज D। अभी हमने क्या किया था, C को सेंटर लेके एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, D को सेंटर लेके एक आर्क ऐसे लगाएंगे। जहाँ पे हमारा कट होता है हम उनको ज्वाइन करेंगे अपने O सेंटर के साथ, ठीक है। दिस इज़ अवर 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री है ना। ये तो बहुत ईजी होता है, 90 डिग्री का एंगल आ गया, पर 90 का हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 60 डिग्री का एंगल। तो 60 का तो सबसे पहले हमारे पास आ ही चुका था। सबसे पहला जो कट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 का। तो ये 60 डिग्री का आ चुका है। 30 का बनाने के लिए मेरे को दो जगह से आर्क लगानी पड़ेगी, वन फ्रॉम 60 अनदर फ्रॉम 0। देखो ये रहा, ये तो रहा 60 का पॉइंट, ये रहा 0 का पॉइंट। बना देते हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना बिल्कुल भी। 60 से एक आर्क लगाई, दूसरी लगाई 0 से, एक दूसरे को कट करते हुए जानी चाहिए ये हमारे पास। और ये गया हमारा 30 डिग्री का एंगल। ये आ गया कितने डिग्री का, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लिखना नहीं होता वैसे, पर नीचे ज़्यादा ही कंजस्टेड सा हो रहा था तो हमने ये 30 का,
ये हमारा 60 का और ये मेरा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अभी ये तो बन चुका है, दिस पार्ट इज़ ओवर। अब मेरे को बनाना है 22.5 का। एक आर्क कहाँ से लगेगी, 45 से, दूसरी आर्क 0 से। अब 45 का एंगल भी नहीं बना, तो 45 का अगर मेरे को एंगल बनाना पड़ेगा तो 45 का डबल कर लो, 90 और 0। 45 का बनाने के लिए एक आर्क 90 से, दूसरी आर्क 0 से। चलो पहले 45 का बनाते हैं। 45 का एक आर्क लगेगी 90 से, 45 का अगर बनाना है तो, और दूसरी आर्क लगेगी 0 से। ये आ गया 45, ये आ गया हमारा 45, ये आ गया 45। पर 45 का तो नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए 22.5 का। तो 22.5 के लिए एक लगेगी 45 से, दूसरी लगेगी 0 से। ये रहा 45, इस पर रख लेते हैं कंपास का टिप। एक लगी 45 से और दूसरी लगी 0 से। ज्वाइन करो, ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल आएगा हमारे पास किसके इक्वल, 22.5। ये आ गया 22.5 का। देखो हमने किस किस का बनाना था, एक तो बनाना था हमने 30 का, ये एंगल, एक बनाना था 22.5 का, ये सेकंड पार्ट है। अभी हमारे पास कौन सा बचता है, अभी हमें बनाना है 15 डिग्री का। और 15 के लिए आर्क कहाँ कहाँ से लगेगी, 30 एंड 0। तो 30 का भी बना है हमारे पास, 0 का भी पड़ा है हमारे पास, तो 15 डिग्री का तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आई होप सो। पहली आर्क हम 0 से लगा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है 30 से ही पहले लगाएंगे, 0 भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये गया हमारा एंगल 15 डिग्री का, ये गया। आप इनको कंपास से मेज़र करके देखेंगे तो सारे एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे, सॉरी प्रोट्रैक्टर से अगर मेज़र करके देखेंगे तो बिल्कुल सारे एंगल उतने ही डिग्री के मिलेंगे जितने डिग्री के आपको बोले गए हैं। दीज 3 आर द रिक्वायर्ड एंगल्स। ये थे वो तीनों एंगल्स जो आपको चाहिए थे। आई होप कि अब आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, जस्टिफिकेशन इज़ नॉट नीडेड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको 3 एंगल बनाने हैं, वन इज़ ऑफ 75 डिग्री, सेकंड जो आपको बनाना है दैट इज़ ऑफ 105, एंड जो थर्ड एंगल आपको बनाना है दैट इज़ ऑफ 135 डिग्री। ओके, एक में ड्रॉ करते हैं तीनों को। सेम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लिख लोगे, एक में मैंने आपको आइडिया दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो रे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ओ इनिशियल पॉइंट और ये है हमारा इसका ए नेक्स्ट पॉइंट। ओ को सेंटर लेके हम यहाँ पे एक रेडियस, एक सॉरी आर्क लगाएंगे जो बी पे कट करता है, बी से सी और सी से कौन आ जाएगा हमारा डी। मार्किंग कर लेते हैं, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 90 डिग्री का तो एंगल हमारे पास सी और डी से आ जाएगा। ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये वाला, ये जो एंगल जाएगा दिस इज़ ऑफ 60 डिग्री। दूसरा जो एंगल जाएगा वो जाएगा हमारे पास ऑफ 120 डिग्री। और 60 और 120 से जो आर्क लग के एंगल बनेगा दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो ये तो रिक्वायर्ड एंगल होते हैं, मतलब बिल्कुल ही बेसिक फंडामेंटल एंगल, इनको बनाना ज़रूरी होता है बाकी के एंगल निकालने के लिए। तो मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ 60, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 120 डिग्री। कन्फ्यूज़न ना हो आपको। नाउ जस्ट सी, अभी हमने बोला था अगर मेरे को 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो मेरे को 2 एंगल से आर्क चाहिएगी। मेरे को 150 डिग्री का एंगल चाहिएगा, इसके लिए 75 का डबल क्या होता है 150, और दूसरा मेरे को 0 से चलेगा। 105 के लिए आप ना एक आर्क आप लगा सकते हैं 90 से, दूसरी आर्क आप लगा सकते हैं 120 डिग्री से। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे डिफरेंट क्यों लिया। सेम वे में क्योंकि डबल इनका ज़्यादा आगे चला जाता है, दैट्स वाई 135 के लिए हम एक आर्क लगाएंगे 120 से और दूसरी आर्क लगाएंगे हम 150 डिग्री से। देखो अगर हम 120 और 150 को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करें ना तो 135 आएगा। तो हमें वो 2 एंगल ढूंढने हैं जिनके ये बिल्कुल मिडल में आए। देखो 150 से भी 135 15 डिग्री दूरी पे है, और 135 120 से भी 15 डिग्री की डिस्टेंस पे है। ये दोनों से ना इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। 135 150 से भी 15 डिग्री की दूरी पे है और 135 120 से भी, दोनों के बिल्कुल बीच में पड़ रहा है। तो वी कैन टेक द एंगल लाइक दैट ऑल्सो। जैसे इस एंगल 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक तो 150 से और 0 से बन सकता है। दूसरा एक और तरीका है 75 का बनाने के लिए, हम इसके एक आर्क 90 से और दूसरी आर्क हम 60 से लगा सकते हैं। कैसे?
90 और 70 में भी 15 डिग्री का डिफरेंस है, और 75 और 60 में भी कितने का डिफरेंस है, 15। मतलब ये जो एंगल हम बना रहे हैं ना, ये दो एंगल जो हमें इजी है कंस्ट्रक्ट करना, उनसे इक्वल डिस्टेंस पे हों तो वहाँ से भी दो आर्क लग सकती है। जैसे हम यहाँ पे अगर मेरे को 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो 45 का मैं 90 और 0 से भी बना सकती हूँ, ठीक है। बट 45 का ऐसे भी तो बन सकता है 60 और 30 से, क्योंकि देखो दोनों से ही 15 डिग्री की डिस्टेंस पे वो बैठा हुआ है। तो 45 डिग्री का बनना मतलब एंगल को बनाने के एक तरीके नहीं होते, कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 75 का बना लेंगे। 75 के लिए मैं 90 और 60 की हेल्प लूँगी, जो कि दोनों मेरे पास यहाँ पे रखे हैं। मतलब मेरे पास एक आर्क जाएगी 90 से, एक आर्क जाएगी 60 से। ये जो एंगल मेरे पास जाएगा, दिस एंगल विल बी ऑफ 75। ये आ गया मेरे पास एंगल 75 का। ये जो एंगल है ना, ये 75 का आ गया। मतलब फर्स्ट ये वाला हमने कर लिया। अब मेरे को 105 चाहिए, उसके लिए 90 और 20 चाहिए। देखो 90 और 120 दोनों हैं, दोनों के बीच से हम निकालेंगे 105 को। एक आर्क 120 से, थोड़ा सा कंपास ज़्यादा खोल लेते हैं, एक आर्क 120 से, दूसरी आर्क 90 से। करो ज्वाइन। ये जो एंगल गया ये वाला, दिस वन, दिस इज़ ऑफ 105, ये गया 105 का। अभी हमें किसका चाहिए, 135 का। 135 के लिए हमें चाहिए 150 एंड 120। 120 तो हमारे पास है, 150 का बनाना पड़ेगा। 150 के लिए मेरे को 180 और 120, 180 और 120 से लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बिल्कुल बीच में देखो 180 जो है 150 के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, और 120 और 150 मतलब दोनों के बिल्कुल बीच में पड़ेगा 150, इसीलिए समझ आ गया होगा, समझदार बच्चों हैं। ये है 180 का। तो एक आर्क 180 से, दूसरी आर्क 120 से अगर हम करते हैं ज्वाइन, तो ये जो एंगल आता है, दिस एंगल इज़ ऑफ 150 डिग्री। ये वाला एंगल 150, बट मेरे को कितने का बनाना, 135, 150 और 120 से आर्क लगेगी। 150 और 120 से आर्क लगेगी। करिए ज्वाइन। सॉरी, ये आ गया हमारा, ये आ गया जी हमारा, ये वाला एंगल आ गया 135 का, ठीक है। कौन कौन सा एंगल बनाना था, 75 का। ये वन से ये आ गया 75 डिग्री का एंगल, ये वाली लाइन, ठीक है। दूसरा किसका बना था, 105 का, ये रहा 105 वाला, सॉरी ये रहा 105 वाला, ठीक है। और तीसरा हमें क्या चाहिए था, 135 का, ये रहा 135, ये वाला 135 है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड्स एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी जस्टिफिकेशन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसकी जस्टिफिकेशन भी ईजी है। वही गिवन रे बनानी है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेटेस्ट टेक, हमने इसको 4 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया। हमने इसको किया है कितने का, 4 का कर ले, 5 का कर ले। लेटेस्ट टेक हमने इसको 5 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया। इस पॉइंट पे कंपास रख के हम 5 सेंटीमीटर को यहाँ पे कट कर देंगे, और हम इस तरीके से एक आर्क बनाएंगे ऐसे। सेम वे में इक्विलेटरल बनाने के लिए हमने यहाँ पे कंपास रखा और एक आर्क इस तरीके से लगाई। मतलब एक बार तो ओ पॉइंट पे रख के ए से एक आर्क लगाई, एक बार ए पे रख के ओ पे आर्क लगाई। जो ये पॉइंट आया है, लेट अस टेक दिस इज बी को ओ के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और बी को ए के साथ, ए और ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। जो ये ओ ए बी ट्रायंगल आई है, दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज हाउ वी कैन डू कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। हमें कैसे पता लगेगा, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया इसको, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यू में राइट। कैसे, टेक आर ए ओ ए, आप ओ एक्स ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए मैंने यहाँ पे ले लिया। टेक आर ए ओ एक्स, हमने इसकी गिवन साइड को 5 सेंटीमीटर ले लिया। हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने उसको 5 सेंटीमीटर लिया है। 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके टेकिंग ओ एस सेंटर वी हैव ड्रॉन एन आर्क, जो कि यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया। टेकिंग सेम रेडियस ओ पे ए पे कंपास को रख के एक आर्क लगा दी। जहाँ पे हमारी कट होती है दोनों आर्क,
उस पॉइंट को वी हैव टर्म्ड एज बी, बी को ओ के साथ ज्वाइन किया, बी को ए के साथ ज्वाइन किया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अगर आप मेज़र करके देखेंगे दिस विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर आप स्केल से मेज़र करेंगे तो सारी साइड आपको सेम मिलेगी 5 सेंटीमीटर की। दैट शोज दैट दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जस्टिफिकेशन कैसे करके दिखाएंगे, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुकी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल आपके पास कितने कितने डिग्री के आएंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, कैसे, ये देखो, जब आप फर्स्ट कट लगाते हैं तो वो कितने का होता है, 60 का। यही होता है ना, ये एंगल 60 का। और यहाँ से भी जब आप फर्स्ट कट ऐसे लगाएंगे तो ये कितने का आएगा, 60 का। जब दो एंगल 60 के आ चुके हैं तो तीसरा एंगल भी किसके इक्वल आएगा, 60। और तीनों एंगल किसके इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल के। दिस इज द वे हाउ यू कैन शो दैट दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल। इसमें जस्टिफिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको अभी प्रूव किया है। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट कहीं पे होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को एक बार दोबारा देख ले, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू हियर और इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू एक्सरसाइज ऑफ योर कंस्ट्रक्शन चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।